भैया वॉशिंगटन में तो बड़ी टाइट हवा चल रही है यहाँ, बहुत ज़बरदस्त हवा है यहाँ। तो अब जिस जगह पे हम जा रहे हैं इसको कहते हैं लिंकन मेमोरियल। ये यूएस के 16 प्रेसिडेंट का जो है यहाँ पे स्टैचू है। उनका नाम था अब्राहम लिंकन। तो उनको असैसिनेट किया गया था 1865 में। तो उनकी याद में अमेरिका ने का स्टैचू एक बनाया। स्टैचू जो है वो जिसने बनाया था उसका नाम था डैनियल, वो स्कल्प्टर था। और ये स्टैचू 4 साल के अंदर कंप्लीट हुआ। और इनको जब शूट किया गया तो ये कहते हैं कि ये एक जो है स्टेज शो के दौरान स्टेज शो देख रहे थे, उस दौरान एक एक्टर ने इनको सर पर गोली मारी और इनको जो है वो मार दिया। तो उन्हीं की याद में अमेरिका ने लिंकन मेमोरियल के नाम से इनका एक टेंपल बना दिया। खूबसूरत वाइट मार्बल से इनका स्टैचू बनाया गया जो कि 1920 में वो यहाँ लाके रखा गया। अभी देखो इनका अंदर से जो है ना स्टैचू आपको नज़र आएगा। ये देखा आपने, अंदर जाके दिखाता हूँ। और यहाँ से ये नज़ारा है। हम जा रहे हैं। तो भाई ये है भाई वॉशिंगटन में तो न्यूयॉर्क से ज़्यादा हवा है, बहुत टाइट ठंड है यहाँ। और बस ये लिंकन मेमोरियल यहाँ पे पिक्चर्स नहीं है। अब बस यहाँ से जो है वो जाते हैं आगे न्यू अट्रैक्शन की तरफ। कैरियर वाइट हाउस जाएंगे और एक मेरे ख्याल में कैपिटल बिल्डिंग है यहाँ पे ना, तो वो वहाँ जाके पिक्चर्स लेंगे। यार इतना रश है पिक्चर्स खिंचवाने की नहीं है, इतने लोग आए हुए, इतने टूरिस्ट है, मौका ही नहीं मिलता आपको कि आपकी एक अच्छी से पिक्चर आ जाए। खैर चलो जितना हो सका ली है। अब हमें जाना था वाइट हाउस को देखने। वाइट हाउस यूएस प्रेसिडेंशियल हाउस है जहाँ जो भी अमेरिका का सदर बनता है वो वाइट हाउस में ही रहता है। ये 1800 सेंचुरी में बना था। और अब देखते हैं इस वाइट हाउस के आगे जा पाते हैं या नहीं। What is blocking the whole view, but we are going to go in front of that tent and let's see if we can catch anything over there. Okay, so let's talk about the White House. As I mentioned, it started to be built in 1792, and you see the gray building that is right next to the White House to the left. That is the Eisenhower building, where most of the staff that works with the White House, meaning the presidency, will be working right over there, because the White House is just like for the president and the closest team of the president. So the White House was not always called the White House. It was actually the presidential house or the executive house. It was in 1901 when they started to call it the White House. Why? Because of the climate conditions, many parts of the outside walls were very damaged, so they had to whitewash the house a lot. That was when the journalists started to call it the White House, and the President Theodore Roosevelt was the first one to call it officially the White House.
We have had, as you may know, many presidents in there, and all of them can do some like different. चलो यार, अब आ चुके हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे। पूरा वाइट हाउस सामने। ये रहा भाई वाइट हाउस। It's right here in the corner, the white one and the one right here. Those are two hotels. One is the Washington Hotel and the other one is called the Willards Hotel. Both of them are considered to be the president's hotel. The thing is that many of the presidents that will come here to visit the White House will come all the way here and stay in this place. And you see like the brown one that is in the corner, that is the Marriott. And over there is where we have most of the paparazzis or the journalists staying there so that they have a good view to the other hotels that are on the other side. This one over here is going to be the Department of the Treasury. That was one of the first buildings also to be built right next to the White House. But we have very bad news. As you saw, the sidewalk is closed over there. So I'm just trying to make a call right now to see. सभी पता है ना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीत गया है। तो उसकी जनवरी में उसकी जो है वो क्या कहते हैं वो तकरीब है 18 तारीख है। इस वजह से हो सकता है एक्सेस ना मिले अंदर वहाँ के करीब जाने का। तो यार काफ़ी ट्राई के बाद हमें एक्सेस नहीं मिला वाइट हाउस के सामने की तरफ जाने का। क्योंकि जैसे आपके इल्म में है, जनवरी में वोट टेकिंग सेरेमनी है डोनाल्ड ट्रम्प की, उसकी तैयारियां चल रही हैं। फर्दर ये दिसंबर में क्रिसमस आने वाला है तो उसकी अलग से तैयारियां चल रही हैं। तो हमारी टूरिस्ट गाइड ने अपने काफ़ी कॉन्टैक्ट्स घुमाए, बहुत कोशिश की कि किसी तरह हमें एक्सेस मिल जाए सामने फ्रंट की तरफ जाने का, ताकि हम लोग जो है वो अच्छी सी पिक्चर्स ले लें, लेकिन नहीं मिला एक्सेस। तो आज हमें इसी तरह ही वापस जाना पड़ेगा। तो फिर देखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिले तो फिर मैं आपको ज़रूर आगे की तरफ लेके जाऊंगा और वहाँ का वाइट हाउस का व्यू दिखाऊंगा। It is possible, to your embassy. And after that, they will do the same procedure and then you'll be able to go inside. It's just a long procedure, that's why not many people actually do it, but it is possible. Here on your right, you have the government of the District of Columbia, meaning the mayor office. You see that electronic sign on your right? So there are certain times where you'll be able to see the amount of money that they have paid in taxes. And the main reason for that, $1 billion they have paid, $7,000 million they have paid in taxes all this year. Now, why do they place that in front of the mayor office? It is because the people from Washington DC to live here. We have a population of 700,000 people and they don't have any representation in the Congress. Why? Because Washington DC is not considered a state of the US. So the only ones who have senators in of the US, kind of complicated. The thing is that the quantity of votes that they have of each state for the presidency depends on the number of representatives that they have in the Congress. So all the way up to 1964, the people from Washington DC were not even able to vote for president. And in 1971 was the first year where they could vote and have a mayor. Before that, it was the president who selected who was going to be the mayor. Not that expensive, right? Alright, so here on your left you are going to find the FBI building, the FBI Edgar Hoover building. It was built in the 1970s. Inside of this building we have around like 7,000 people working there daily.
It was built because the space of the Department of Justice was not enough for the whole bureaucracy of the FBI. And the Department of Justice, you have it on your right. That is where Robert Francis Kennedy was the Attorney General. He used to work there, and that is also the reason why that building is named after him. And here on your right, you have a beautiful building that is going to be the National Archives. In this place is where we have the most important documents of the US. We have the Declaration of Independence, the Constitution, the Bill of Rights, the Proclamation of Emancipation. All of that will be over here. And if you look as Mario turns to the right, you'll see on your left a little bit of the Capitol, but just wait for it because we'll have a beautiful view up next. So the National Archives, the good part is that they have a section that is part of the Smithsonian Institution. So you can go all the way in and you'll see an original copy of the all the documents that I mentioned before. Here on your left, you have the National Gallery of Art that has two different history museums. Are you ready now for the best view of the city? Okay, Mario will slow down so that you on your left will have the Capitol, and on your right you'll have the Washington Monument, and right behind it we could spot the Lincoln Memorial where we were at. More time. Okay. तो यार अभी उसने उतारा है हमें लंच के लिए कि आप लोग लंच कर लें कोई 1.5 घंटे तक। तो अभी बस यहाँ उतरे ही है वाशिंगटन। ये मेरे पीछे कैपिटल बिल्डिंग अगर आपको दिख रही हो, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये वो पीछे है कैपिटल बिल्डिंग, अभी वहाँ जाएंगे और देखेंगे उसको भी सही से। मैं अभी लंच के लिए उतारा है। ये मेरे सामने जो बिल्डिंग है इसको कहते हैं स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम। स्पेस म्यूज़ियम है। यहाँ पे आप टिकट लेके जा सकते हैं, ये फ्री है, मतलब आपको सिर्फ रिजर्वेशन करवानी होती है। लेकिन अभी हम यहाँ आने जा रहे हैं, हम अभी कुछ खाने के लिए चलते हैं। और इसके आगे जो आप येलो कलर की वो बिल्डिंग देख रहे हैं उसको कहते हैं नेशनल म्यूज़ियम ऑफ द अमेरिकन इंडियन। तो इन दोनों म्यूज़ियम में हम जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कुछ कम था क्योंकि हमें सिर्फ 1.5 घंटे का ब्रेक मिला था। इसमें हम कुछ खा रहे थे, काफ़ी भूख भी लग रही थी। तो हमने सोचा हम म्यूज़ियम जाने से बेहतर है हम कहीं चलते हैं और जाके कुछ खाते हैं। तो हमें आगे जाके मैकडोनल्ड दिखा, तो हमने वहाँ जाके अपना लंच किया। भूख लग रही थी, बस अभी मैकडोनल्ड आए। मैकडोनल्ड में आके यार मैंने कहा कुछ लंच वंच कर लूँ, फिर उसके बाद चलते हैं बाहर। वहाँ पे दोबारा 4 बज जाएंगे, 4 बजे पिकअप पॉइंट पे दोबारा मिलना है। अब यहाँ पे जो है वो 3 बर्गर लिए हैं, तो तकरीबन मुझे $16.5 के पड़ गए। तो भाई अभी हम आ गए हैं कैपिटल बिल्डिंग में, जो कांग्रेस जो मतलब यहाँ का जो पार्लियामेंट है अमेरिका का, वो ये है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये अभी हम हैं कैपिटल बिल्डिंग के पास। यहाँ से आपको क्या नज़ारा कैपिटल बिल्डिंग का खूबसूरत। तो यार वाशिंगटन डीसी भी हो गया भाई, और यहाँ भी आ गए। अब बस जा रहे हैं वाइट हाउस में। यार अंदर असल में वो एक तो जनवरी में उनकी इनॉग्रेशन है डोनाल्ड ट्रम्प की, और प्लस ये है कि वो क्रिसमस के लिए तैयार हैं। तो उस वजह से उस साइड पे तो जाने का मौका नहीं मिला, जहाँ से पिक्चर्स बड़ी क्लियर आती हैं। लेकिन जैसा भी है, जैसा हुआ पिक्चर ले ली यार। तो यार अभी सर्विस स्टेशन पर रुके हैं वापसी के सफ़र में। 2 घंटे का सफ़र हो गया, 2 घंटे का और बाकी है। मैं यहाँ रुक के थोड़ा सा थैंक यू पानी वानी पी लें। वॉशरूम कर लें, फिर चलते हैं यहाँ से। तो ये है न्यूयॉर्क सिटी की स्काईलाइन। इसको जितनी दफ़ा देखो उतनी ही दफ़ा खूबसूरत लगती है। ये है न्यूयॉर्क जो कभी नहीं सोता। ये है वो न्यूयॉर्क जो लोगों के लिए सपनों का शहर है।
जहाँ हर कोई आना चाहता है, देखना चाहता है। ये खूबसूरत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो आसमानों से बातें करती हैं, ये है वो न्यूयॉर्क। तो अब वापसी पर हमें बस ने टाइम स्क्वायर पर उतार दिया। तो फिर क्या था, हमने सोचा फिर एक दफ़ा और टाइम स्क्वायर के इस मनाजिर को अपने कैमरे में कैद कर लिया जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा।